Okay, gentlemen, I was talking about the augmentation of the matrices. So this is the system in front of you, and I have written it in the matrix form, and this is called the augmented matrix, where you write two of the matrices together under one pair of brackets. Now my intention is, listen, how to proceed with in such questions that I'll be expressing this matrix into a matrix of an identity matrix. You know, an identity matrix of order 2, here should be 1, below it should be 0, then at this position should be 0, and at 2 position it should be 1. In the diagonal you get 1 and the remaining empties as 0. That is called the identity matrix. So I am to express my given matrix, the coefficient matrix, into a matrix which is identity matrix by applying the row operations. And the same row operations we'll be doing on the right side also of this vertical bar. So this I have written here. So we'll transform this matrix into an identity matrix of order 2, that is in the form 1 0 0 1. This is the identity matrix. And one thing more, that in all such row operations, you must try your best to avoid the fractional number as much as possible. Yes, if it is, once it is unavoidable, so you have to go for the fractional numbers because there will be no option left. But in case, if some tactics could be used to avoid the fractional number, try your best to avoid that. Now my intention is to get a 1 here at 1 1 position. There is one simple method, that I multiply the whole row with -1/2. My sign will be cancelled and 2 multiplied with 1/2 will become 1. This is the easiest way to get a 1 here. But the problem will be arising then. What problem? That then you will be getting fractional numbers here, 5/2, right? So in order to avoid that, I am using one of the tactics. That tactic is that if I add the second row in the first row, I mean multiply the second row with 1, which will remain the same, and add it in first row. This is your third step of your row operations. You can do it. So adding the third row in the adding the second row in the first row, so 3 and -2, you will get 1 here without any fractional number. So add, and the row operation will be written in this way. Look here, that you are doing an operation or R1, and what operation? That second row is going to be added in first row. Row R1 means first row, R2 means second row. Add here, 3 minus 2 is 1, then -2 and +5 will be 3, and -5 plus 40 will be 35. Second row as it is, because we have done nothing on second row, so write second row as it is. I'm sure nothing is difficult in that. Once you get 1 at 1 1 position, try your best to make every element below it as 0. So there is only one element below it in this case. How can we make it 0? Remember, देखिए 5 में -5 आप ऐड कर देंगे 0 हो जाएगा, 7 में -7 ऐड कीजिए 0 हो जाएगा, -8 में +8 ऐड कर दें 0 हो जाएगा. तो ये कहलाते हैं एडिटिव इनवर्स. If you search out the additive inverse, whenever we will be adding in that, the answer will be 0. So what is the additive inverse of 3? This is -3, क्योंकि इसमें add होगा तो 0 हो जाएगा. So multiply with the additive inverse, that is -3 with R1, and add the result in R2. ये आपका तीसरा ऑपरेशन है जो मैंने कहा था ना, बार बार आप कर रहे होंगे.
So multiplying the whole row with minus 3. इसे fake element के लिए नहीं होगा, that we have to do it. We have to perform on the complete row. तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड किया, ये 0 हो गया. इसको माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया -9, इसमें ऐड करेंगे तो -9 एंड -2. मैंने कहा था ना माइनस 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 होता है वंस इट इज बीइंग एडेड. पहले आपने मल्टीप्लाई किया तो दिस हैज बिकम -9. अब हम -9 जो रिजल्ट आ गया उसको ऐड करेंगे यहाँ -11. सो मल्टीप्लाई विद -3. ठीक है, ये -105 हो जाएगा. इसमें ऐड करने से ये -110 हो जाएगा. डन. मेरा पहला कॉलम ठीक हो गया. 1 0. हमेशा आपने पहले इसको 1 बना के नीचे 0 करना है. फॉलो दिस कंसेप्ट. फिर अब हमें 2 2 पोजीशन पे 1 चाहिए. आइडेंटिटी के लिए यहाँ 1, फिर यहाँ 1. तो व्हाट शुड आई डू? ये क्वेश्चन खुद बता रहा है दैट मल्टीप्लाई विद इट्स रेसिप्रोकल. और ये चूंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा. तो -1/11 वी आर टू मल्टीप्लाई विद सेकेंड रो. -1/11. देखिए ये सेकेंड रो है. Nothing is being done on the first row. You write the first row as it is. Operation is being done on R2. What operation? That you are multiplying R2 with -1/11. Easy. So -1/11 multiplied with -11 will yield the result as 1. And similarly here you'll be getting the answer as 10. Clear? We have got 1 over here. Now we have to make this 3 as 0. जी अब 3 को 0 बनाना है तो इस 3 का एडिटिव इनवर्स आई टोल्ड यू अगेन -3 होता है. तो इसको अब मैंने R2 में मल्टीप्लाई करना है. हियर यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड द रिजल्ट इज टू बी एडेड. तो ये पूरी रो के साथ ही काम होगा. सो नाउ वी आर गोइंग टू डू एन ऑपरेशन ऑन R1 क्योंकि रिजल्ट वहां जाके ऐड होगा. जहां ऐड होगा वो ऑपरेशन होगा वहां पे. ऑपरेशन विल बी डन ऑन R1 दैट यू आर मल्टीप्लाइंग दिस सेकेंड रो विद -3 एंड द रिजल्ट इज टू बी एडेड इन R1. पूरी रो को -3 से मल्टीप्लाई किया. इसको -3 से किया, इट विल रिमेन 0 और ये 1. इसमें तब्दीली नहीं आएगी, ये ऐसे ही रहेगा. मल्टीप्लाइड विद -3 इट विल बिकम -3 एंड +3 आंसर विल बी 0. देन here multiplied with -3 -30 add here -30 plus 35 will be 5. So I achieved my target that I have got an identity matrix on my left side. अब पहला कॉलम आपको याद है ये x का था और दूसरा किसका था? y का. तो ये x है प्लस 0 y. 1x प्लस 0 का मतलब सिंपली x. तो x इज इक्वल टू 5. सिमिलरली y इज इक्वल टू 10. डन. एक ही आंसर आया. ओनली वन पेयर ऑफ पॉइंट यू हैव गॉट. x is 5 and y is 10. So this is a unique solution because you have got only one solution. You can ask if you have any question. Anybody having any question that I have done right now? You can ask. Otherwise, I proceed to the next. G. Do you have any question? No. Okay, then I proceed. See the second case, example number 2. In this case, you'll be seeing that the system has infinite many solutions. Solve the following system of equations by Gaussian elimination. The system is in front of you. We first write the augmented matrix of this system. So ensure the equations are already in the standard form. What is the standard form? That the first column should be of the same variable, second another variable, and pure constant terms should be shifted to the right side. So system is already in the standard form. After that, you make the augmented matrix. So you write the coefficient matrix first. 3 minus 15 minus 2 10, and the constant matrix 6 and minus 3 30 together by drawing a dotted line in between and then enclosing them in one pair of brackets. This is the augmentation of two matrices together.
After that, we will be again following the same style, that we'll try our best to make or reduce this matrix into an identity matrix. So I wish 1 over here, and यहाँ पे अब आपके पास मजबूरी है कि सेकंड रो से कोई हेल्प नहीं मिल रही हमें, and we can't get 1 over here with any other method. तो एक ही मेथड रहता है लास्ट ऑप्शन, दैट यू मल्टीप्लाइड विद इट्स रेसिप्रोकल। 7 को 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, -4 को -1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1 आ जाएगा। दीज आर द रेसिप्रोकल्स। तो 3 का रेसिप्रोकल 1/3 होता है। ऑपरेशन विल बी डन ऑन R1, दैट R1 इज टू बी मल्टीप्लाइड विद 1/3। पूरी रो को 1/3 से मल्टीप्लाई की गई, तो ये हो गया 1, ये -2/3 और ये 6/3, आंसर आ जाएगा 2। ये हमने किया है कौन सा रो, सेकंड स्टेप। मेरा वो जो रो ऑपरेशंस का मैंने आपको 2 स्टेप बताया था ना, पहला था यू कैन इंटरचेंज एनी 2 रोज, सेकंड वाज दैट यू कैन मल्टीप्लाई एनी रो विद ए नॉन जीरो कांस्टेंट। ये 1/3 का नॉन जीरो कांस्टेंट है, हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। वंस यू हैव गॉट 1 ओवर हियर, तो अब नीचे वाले को जीरो करना है, आगे के भूल जाए, फॉरगेट अबाउट द रिमेनिंग वन। यहाँ के 1 को फिक्र नहीं करें अभी आप, पहले इस 1 के बाद देन नेक्स्ट स्टेप इज टू मेक the elements below 1 as 0 you want. तो वेरी सिंपल, -15 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +15। तो इस 1 को +15 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड कर दें, तो राइट सिंबॉलिकली हियर that operation will be done on R2. What operation? That R1 is to be multiplied with 15 and the result is to be added in the second row. The 15, this will become +15 और -15, आंसर is 0। इसको 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 5 the 15 और -2 into 5 will be -10। इस रिजल्ट को ऐड कीजिए इसमें, तो -10 यहाँ है और +10 ये है, आंसर 0 हो गया। जन में रख लीजिए 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 into 15 will be 30, प्लस का 30 और इसमें ऐड करें -30, आंसर is 0। तो ये कंप्लीट रो 0 हो गई। जब ये रो 0 हो गई तो अब इसकी आप इक्वेशन बना लीजिए। पहला कॉलम और x का था, ये y का, तो लिखेंगे x -2/3y इज इक्वल टू 2। ठीक है, मैं इस 2/3y को राइट पे ला रहा हूँ क्योंकि इस y के कॉलम में हमारे पास कोई लीडिंग वन नहीं है, इसको हम लीडिंग वन कहते हैं। x के कॉलम में लीडिंग वन है, तो कीप x ऑन द लेफ्ट साइड एंड दिस इज अ फ्री वेरिएबल, इसको कहते हैं आर्बिट्रेरी या फ्री वेरिएबल, क्योंकि इसमें कोई लीडिंग वन नहीं है इस कॉलम में, तो आप इसको राइट पर ले जाइए। ठीक है, तो x is now equal to 2/3y plus 2. As many values you will give to y, so many values you will be getting for x. फर्स्ट करने में x y को 3 रखता हूँ, तो 3 से 3 कैंसिल होगा, x से क्या आंसर आ जाएगा, 4 आ जाएगा। y को मैं 9 रखता हूँ, तो 3 3 9, फिर 3 2 6 plus 2 8 आ जाएगा। So you keep on giving the values, different values to y from your own side, choices क्योंकि y arbitrary है, free है, you can give any value to it. That's why we call it a free variable. So as many values of y we will put, so many values for x we will get, and solution is infinite many. तो infinite many मैट्रिक्स से कैसे पहचान आई कि एक कंप्लीट रो लेफ्ट हैंड साइड पर सारी 0 हो जाएगी, तो आप कहेंगे the solution is, the system has infinite many solutions. समझ में आ गई? अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, वेल एक्स की वैल्यू ये हो जाएगी, वाई की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, यहाँ से। ठीक है, वाई 0 हो सकता है, यहाँ पे अगर 1 है तो वाई में भी 0। सो दिस इज द criterion to decide when do we get infinity many solutions, just looking at our
स्टेट ऑफ द मैट्रिक्स किस हालत में ये पाई जा रही है। इस मैट्रिक्स में आप देखिए कंप्लीट रो जो 0 आ जाएगी तो आप पाएंगे इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन। तो पहला केस जो पढ़ा था वो यूनिक सोल्यूशन था और ये है इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस। टुगेदर वी कॉल देम दैट द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। And now I'm taking an example where solution is not possible. No solution occurs and the system will be called as the inconsistent solution. This is the third case I'm taking where there is no solution. Solve the following system of equations by Gauss elimination. I am giving you this pair of equations. The augmented matrix of the system may be written as इसकी coefficient matrix लिखते हैं। पहला column में आएगा 6 and minus 1.5, in the second column minus 12 and 3, and just draw a dotted vertical line and you write the constant matrix, that is 24 and 9, and under one pair of brackets you enclose all these numbers. This is the augmentation we have done. अब इसके बाद आपकी इंटेंशन क्या होनी चाहिए? Just to reduce this matrix into a matrix of and to an identity matrix of order 2. So you need to have 1 over here. तो अच्छी बात है, डायरेक्टली इसको 1/6 से मल्टीप्लाई करने, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है 1/6. तो you are not going to get any fractional number, so this is a good thing. You can directly go for that. Here we need not to apply any sort of tactics. Okay, so multiply operation is done on R1, इसलिए R1 लिख के फिर एरो हेड डालिए. इसका मतलब क्या है? An operation we are going to do on R1. क्या ऑपरेशन कर रहे हैं? R1 is to be multiplied with 1/6. The whole complete first row we are multiplying with 1/6. ये 1 हो गया फर्स्ट, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 4. 24 divided by 6 हो रहा है तो आंसर will be 4. There is nothing we have done on R2, so write R2 as it is. After that, once you got 1 over here, then my elements below 1 should be 0. अब इसको 0 बनाने के लिए इसका एडिटिव इनवर्स ढूंढिए, तो क्या होगा? प्लस साइन के साथ होगा 1.5. तो पूरी रो फर्स्ट रो को आप मल्टीप्लाई करें 1.5 से और ऐड कर लीजिए सेकेंड रो में, यहाँ 0 आ जाएगा. यस, तो ऑपरेशन विल बी डन ऑन R2. R2 लिखिए, एरो हेड डालिए. R1 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 1.5 से. 1.5 टाइम्स R1 एंड द रिजल्ट इज बीइंग एडेड इन R2. तो मल्टीप्लाई दिस रो विद 1.5. 1.5 प्लस का और ये माइनस का ऐड होने के बाद आंसर क्या आया? 0. मल्टीप्लाई दिस विद 1.5. 1.5 का मतलब है 3/2. याद रखिएगा, ये 3/2. 3/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, -3 आ जाएगा. -3 इसमें ऐड होगा तो क्या आ जाएगा? 0. मल्टीप्लाइड विद 3/2. 2 to the 4 और 2 3 the 6. 6 प्लस 9 क्या आ जाएगा? 15. ठीक है, अब हम इसकी इक्वेशंस बनाते हैं. पहली इक्वेशन तो बन जाएगी, ये x है -2y = 4. फाइन. लेकिन दूसरे में क्या होगा? 0x + 0y = 15. ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, = 15. द लेफ्ट हैंड साइड इज बिकमिंग 0. कभी देखा है आपने 0 को = 15 करते हुए? कहीं भी एवर? x तो 15 हो सकता है, y 15 हो सकता है. हाँ, 15 will be equal to 15, yes, लेकिन 0 can never be equal to 15. So this situation is impossible. So there is no solution and the system is inconsistent. मगर ये थोड़ी सी पहचान में कंफ्यूजन मत कीजिएगा. अगर यहाँ 1 आ रहा है और यहाँ 0 आ रहा है तो ये पॉसिबल होगा इसका आंसर, क्योंकि y है 1 तो y का आंसर 0 आ सकता है. मगर अगर x और y सभी 0 हो गए खुद, they are being multiplied with 0. So you are getting a 0 on the complete left side and 15 on the right side, which is not the possible case. Yes, अगर यहाँ पे भी 0 आ जाता है instead of 15, तो फिर आप क्या कहते हैं? Infinite many solutions, because the complete row is 0, as we did in the previous example. So there are thin lines between the different concepts.
and you are to discriminate between the different concepts. अब आपने जरा रिकॉल कीजिए हमने क्या पढ़ा कि if we are getting an identity matrix on the left side, so we are getting a unique solution. If we are getting a complete zero row after the row operations, तो क्या कहेंगे हम इसको infinite many solutions. And we are getting on the left side all the zeros, and on the right side, I mean after the dotted bar, if we are getting a constant, on the left side are zeros, all zeros. So we say that 0 is not equal to some constant at any time. So we say that solution is impossible, no solution. Now, gentlemen, you can ask any question if you have. Anybody? Any problem to anybody? All the three. सर अगर जैसे 0 मतलब कहीं भी सॉल्यूशन सेट में बराबर आ जाए तो वो पॉसिबल नहीं होता, मतलब नहीं, आप जरा मुझे वाजे करें कहाँ 0 आ जाए? सर वो जो लास्ट में आ गया ना 0 = 15, तो कह रहे आपने बताया था ना कि पॉसिबल नहीं, मतलब कहीं भी सॉल्यूशन सेट पर 0 15 पर आ जाए तो पॉसिबल नहीं, मतलब कंसिस्टेंट है। अगर लेफ्ट साइड पे, इस वर्टिकल बार के लेफ्ट साइड पे सारे 0 और राइट पे कौन सा लेफ्ट साइड, तो फिर पॉसिबल नहीं है। सही है। एनी अदर क्वेश्चन? ओके सर। चलिए अब मैं I take now system of equations with 3 variables, and I'm solving that with the Gaussian elimination method. Gaussian elimination, we go for the back substitution also. Okay, this is another example in front of you. Solve the following system of the linear equations by the Gauss elimination and back substitution भी कह सकते हैं इसका। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि Gauss elimination is more generalized. Here we have 3 variables, x1, x2 and x3, and the equations are 4. Even then we can solve it. But अगर ये system आपसे कहा जाए Gauss Jordan से करें तो आप नहीं कर सकते. Not possible for that. Kramer rule से कहा जाए वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि Kramer rule में आपका determinant आता है that is should be squared. So as many variables are there, so many equations should be there for Gauss-Jordan and for Kramer rule. But any number of variables with any number of rows can be handled by Gauss elimination. So we call it more generalized method. Well, as usual, we are going to write the augmented matrix of the system by first column. Well, the equations are in the standard form. याद रखिएगा, अगर ये वन इधर लिखा होता तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती, पहले हम कॉन्स्टेंट्स को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे और एक ही जैसा वेरिएबल वर्टिकली आना चाहिए आपको। So how can I write the first column? 1, coefficient of x1 is 1, which is not written. 1, 6, 2, and again 1. First column. Second is 2, 1, minus 3, minus 1. Second column. Third is 1, 1, minus 1, and 0. If some term is missing, we will be writing 0 for that. And the constant terms are minus 1, minus 4, 0, and 1. So this is the augmented matrix. Nothing difficult in it to write. Yes, let me tell you one thing more. Previously, you had been handling or only a system of equations with 2 variables, with 2 rows only. Now we are having 4 rows. As usual, we'll be reducing this matrix into the form of an identity matrix as much as possible. So you need a 1 at 1, 1 position. Luckily, you have a 1 at 1, 1 position. After getting 1, you can make all the elements below it as 0 in one blow. देखिए अगर अकेले के बार-बार हर स्टेप में एक स्टेप आप करेंगे तो the solution will become very lengthier. So note down somewhere
In order to make 1, you do only one step. But in order to make zeros, you can do 3, 4, 5 steps together. Zero बनाने के लिए सबको एक ग्लो में zero कर दें. But to make an element as 1, जो leading one हम कहते हैं, जो आपके डायग्राम में आता है 1, 1, उसको 1 हासिल करने के लिए you will do only one step at one time. Well, now I want to make 6 as 0, 2 as 0, 1 as 0 in the second, third and fourth rows. And I'll be taking the help of the first row because 1 के साथ अच्छी बात क्या होती है, इसको जिस नंबर से मल्टीप्लाई करो वो वही नंबर बन जाता है. ठीक है. तो अब ऑपरेशन किस रो पे होगा, सेकंड पे होगा, थर्ड पे होगा, फोर्थ पे होगा. देखिए R2, R3, R4 इन सब के आगे एरो हेड डाल दिया. इसका मतलब है वी आर गोइंग टू डू द ऑपरेशन ऑन R2, R3. अब R2 पे कौन सा ऑपरेशन होगा, यहाँ पे 6 मौजूद है. इसको 0 बनाने के लिए इसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -6 होता है. तो -6 से मैं R1 को मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूंगा, ये 0 हो जाएगा. तो राइट दी ऑपरेशन है. ये ऑपरेशन मस्ट बी रिटर्न, सिर्फ दिमाग में नहीं रखना. ये आप यहाँ लिखेंगे तो टीचर को पता चलेगा कि यू आर डूइंग दिस ऑपरेशन. आप दिमाग में कुछ करें, रिजल्ट गलत आ रहा हो, तो हाउ कैन आई वेरीफाई कि आपने किया क्या है. So these steps to be written must, so that I should come to know that what operation you are doing and whether you are getting the desired results or not. Okay, ये तो एक ऑपरेशन हो गया. अब सेकंड यहाँ पे 2 है. इस 2 को 0 बनाने के लिए इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2. तो मल्टीप्लाई रो 1 with -2 and add in the third row. Row 1 with -2, add in the third row. Question it speaks itself. Multiply this R1 with -1, क्योंकि इसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -1. इसको -1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड कर देंगे तो आंसर ये 0 हो जाएगा. तो you will do an operation on R4 that you will multiply R1 with -1 and the result will be added in R4. So we do it. पहला वाला ऑपरेशन करते हैं, R2 वाला. इस पूरी रो को -6 से मल्टीप्लाई कीजिए और ऐड कीजिए R2 में. तो -6 से मल्टीप्लाई तो -6 बना, इसमें ऐड हुआ 0 हो गया. ठीक है. इसको भी -6 से, सबको एक ही लाइन से करेंगे. -6 से किया -12 और +1 क्या बचा, -11. इसको -6 किया, -6 +1 क्या बचेगा, -5. इसको -6 से मल्टीप्लाई करें, +6 एंड -4 क्या बचा, 2. क्लियर हो गया. ये R2 का ऑपरेशन हो गया. अब R3 का ऑपरेशन आपके सामने लिखा हुआ है. क्या करेंगे हम, इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे. सो मल्टीप्लाई द होल रो विद -2 एंड ऐड इन थर्ड रो. दो -2 +2 0. इसको -2 से किया, ये -4 हो गया. इस -4 को अब ऐड करेंगे यहाँ पे -7. देख रहे हैं आप, -7. इसको -2 से किया तो -2 बना, इसमें ऐड करेंगे तो -3 हो जाएगा. मल्टीप्लाई दिस विद -2 +2. 0 में ऐड करेंगे तो 0 मत लिख देना, अक्सर लोग 0 लिख देते हैं, ऐड हो रहा है यहाँ पे. तो दिस विल बिकम +2 and +0 also will be +2. Do the last operation. -1 से R1 को मल्टीप्लाई कीजिए, R4 में ऐड कीजिए. -1 +1 0. माइनस से मल्टीप्लाई किया, -2 -1 -3. -1 से मल्टीप्लाई किया, -1 बन गया. -1 में 0 ऐड हुआ तो -1 आ गया. -1 से मल्टीप्लाई किया, +1 बन गया. +1 को इस 1 में ऐड किया तो 2 हो गया. Anybody not getting this system? Step by step चलना है हमें. Clear to everybody? Yes or no? Yes sir. Done है. Okay, आगे चलते हैं. अब यहाँ पर देखिए, अब हमने फर्स्ट रो की हेल्प नहीं लेनी. फर्स्ट रो पे ऑपरेशन तो किया जा सकता है, बट वी आर नॉट गोइंग टू टच फर्स्ट रो. अब वी हैव द ऑप्शंस विद 2, 3 एंड 4. अब यहाँ पे हमें 2 पोजीशन पे 1 चाहिए. देखें ना, डायग्राम में 1 आना चाहिए ना. तो हाउ कैन आई गेट 2 पोजीशन पे 1? कोई टैक्टिक्स लगाइए. मैंने बहुत सोचा, देखा कि बगैर फ्रैक्शन के, देखिए एक तो तरीका ये ना कि मैं इसको -1/11 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये सारे फ्रैक्शन में आ जाएंगे. आगे ऑपरेशन आपके लिए मुश्किल हो जाएगा ना. ये तो 1 बन जाएगा, आगे ऑपरेशन मुश्किल होगा.
अब व्हाट टेक्निक्स आई एम यूजिंग, सी हियर, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -2 से बल्कि +6 हो जाएगा। +6 में इसके अंदर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1। फिर -1 से इसको पूरी रो को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आ जाएगा। फिर इस रो को इंटरचेंज कर लेंगे। तो ये एक सीक्वेंस है जो अपने दिमाग में खुद सोचना होगा। कॉमन सेंस जो होगा उसके पास ये काम हो सकता है। यहाँ पे रट्टा शट्टा नहीं चलता। नंबर आपके सामने, दीज 3 नंबर्स, कुछ भी गेम खेले और इसको 1 बना दें किसी एक पे। तो मेरे दिमाग में क्या आया कि इसको मल्टीप्लाई करूँ मैं -2 से, तो ये +6 हो जाएगा। +6 में इसमें ऐड करेंगे तो -1 बचेगा। पूरी रो को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, +1 आ जाएगा। तो इस रो से इंटरचेंज कर लेंगे। 1 will be there at 2 position. ठीक है, that I'm doing here. Look, R3 पे operation है that we are multiplying R4 with -2 and added in R3. इस R4 को -2 से मल्टीप्लाई करके R3 में ऐड कर दें। तो only operation will be done on R3. तो first row, second row and fourth row will remain as they are. देखें आप, first row as it is, second row as it is, and the fourth row as it is. ये fourth row है आपकी। फोर्थ रो की हम हेल्प ले रहे हैं। ये फोर्थ रो पे ऑपरेशन नहीं हो रहा, ऑपरेशन किस पे हो रहा है, जहां इन द नेक्स्ट शेल आप जहाँ पे ऐड करते हैं ना जाके, वो होता है, इस पे ऑपरेशन होता है। तो R3 पे ऑपरेशन होता है, इसमें चेंज आएगी। देखिए अब इसको मैं कर रहा हूँ -2 से मल्टीप्लाई, तो इधर ऐड करूंगा तो इट विल रिमेन 0। इसको -2 से मल्टीप्लाई किया, +6 एंड -7 -1 बन गया। इसको -2 से करें +2 हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो -1 बचेगा। फिर इसको आप मल्टीप्लाई करें -2 से -4, +2, -4 और +2 क्या आता है, -2। डन हो गया। और R2 3 जब मैं इस तरह से लिखता हूँ ना, R2 और दोनों तरफ एरो हेड डाल के R3, इसका मतलब है इंटरचेंज R2 विद R3। ये है मेरी R2 और ये है R3। चलिए इंटरचेंज कर लें। ये अब R2 पे चली जाएगी, 3 वाली 2 की पोजीशन पे आ जाएगी, 2 की पोजीशन पे आ गई। ये देखो 0 -1 -1 -2, ये R3 R2 की जगह आ गई, और R2 जो है R3 पे जाए। ये है 0 -11 -5 2 यहाँ आ गया। फोर्थ रो एज इट इज, कोई मसला नहीं है। फर्स्ट रो भी एज इट इज, इनको हमने इंटरचेंज किया। अब पूरी इस रो को मैंने +1 चाहना है तो -1 से मल्टीप्लाई कर दें। R2 पे ऑपरेशन होगा, मल्टीप्लाई R2 विद -1। तो फर्स्ट रो भी ऐसी रहेगी, थर्ड और फोर्थ भी ऐसी रहेंगी, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ एज दे आर। इसको जब -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, एवरी टर्म विल बिकम प्लस, बिकॉज -1 से ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये भी। तो देखिए ये टैक्टिक्स लगाया, थोड़े से स्टेप ज्यादा हमें करने पड़ गए, लेकिन फ्रैक्शन से हम बच गए, क्योंकि आगे सारा ऑपरेशन फ्रैक्शन में करना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो अब आपके पास 1 आ गया कहाँ, 2 पोजीशन में, जानते हैं ना डायगोनल में 1 1 आना चाहिए, तो बाकी इसके नीचे सब 0। अब इस 1 को हासिल करने के बाद इसको हम लीडिंग 1 कहते हैं। इस लीडिंग 1 के बाद नीचे जो एलिमेंट्स हैं, हमें 0 बनाना है। ऑपरेशन कहाँ होगा, R3 पे होगा इसको 0 बनाने के लिए, और इसको 0 बनाने के लिए ऑपरेशन कहाँ होगा, R4 पे। देखिए R3 और R4 एरो है डाल दीजिए। -11 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, +11। तो R2 को +11 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे। और -3 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, +3। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके R4 में ऐड कर देंगे। 3 से R2 को मल्टीप्लाई करके R4। तो operations what are you going to do must be written in the symbolic form, ये symbolic forms। अच्छा अब देखिए ये आपका है R1, सॉरी R2। इसको 11 से मल्टीप्लाई करें, इसमें ऐड करें, 0 हो गया। इसको 11 से मल्टीप्लाई किया, 11 बन गया। 11 - 5 क्या होता है, 6। इसको भी 11 से मल्टीप्लाई करें, 11 2 22 +2 क्या बना, 24। ये कैलकुलेशन आपको करनी होगी दिमागों में, जो हमेशा कैलकुलेटर लेके बैठ जाते हैं। थोड़ा सा दिमाग को शार्प कीजिए। अब इसको 0 बनाने के लिए हम 3 से R2 को मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 3 बना, और इसमें ऐड किया तो 0 हो गया। इसको 3 से किया, 3 बनता 3 और -1, 3 - 1
2 बच गया, 3 to the 6 plus 2, 6 plus 2 8 हो गया। डन, ये स्टेप आ गया आपका। अब डायगोनल में 1 कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे 3 3 पोजीशन। इसको 1 बनाने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है, 1/6 से मल्टीप्लाई कर दें पूरी रो। चलेगा, 2 ऑपरेशन, इसको भी 1 बना रहे हैं, ना भी बनाए तो कोई हर्ज नहीं है। इसको 1/6 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 1/2 से कर दें। दोनों चूंकि नंबर ऐसे हैं कि फ्रैक्शन में नहीं आ रहे हैं, तो R3 को 1/6 से कर दो और R4 को 1/2 से। तो R3 में ये 1 हो जाएगा और ये 6 4 जा यहाँ 4 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और यहाँ भी 4 आ जाएगा। ठीक है, डन। These two operations are very simple. अब मैंने यहाँ 0 बनाना है, इस लीडिंग 1 के बाद नीचे 0। तो हम टू मल्टीप्लाई दिस रो 3 विद -1, इसको -1 से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट को ऐड कर दें R4 से, तो ऑपरेशन विल बी डन ऑन R4। करें फर्स्ट 2 रोज एज दे आर, उनको नहीं छेड़ा हमने, थर्ड रो को भी ऐसे लिखेंगे। हाँ, इसकी हेल्प लेके एडिशन करेंगे हम 4 पे, तो करें इसको 0 0 तो ऐसे 0 0 रहेगा। इसको -1 से मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड किया 0 हो गया, इसको -1 से मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड किया 0, कंप्लीट रो इज 0। मगर आप ये नहीं कहेंगे